روزے کے ذریعے نفس کو اللہ تعالیٰ دبا دیتا ہے۔ جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے تو اندر کا غصہ جلال کم ہو جاتا ہے، نفس جب کمزور پڑتا ہے تو گناہ کا میلان نہیں ہوتا۔ اور جتنے شیاطین ہیں، جنات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ قید و بند کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے اور بندیاں نیکی کام میں ان کے خلل نہ ہو۔ سفرت الشیاطین و مردت الجن، شیاطین اور جنات کو اللہ قید و بند میں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر نفس بھی کمزور ہو گیا اور ادھر جنات اور شیاطین کو بھی اللہ بند کرتے ہیں، اور دن اور رات میں فرشتے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یہ زمانہ نیکی کمانے کا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، صرف نیکی کے سوچنے والے، اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، خوب نیکی کما، اس لیے کہ یہ نیکی کمانے کا زمانہ ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے کرنے والے کب تک برائی کرے گا، رمضان آیا ذرا رک تو جا۔ جھوٹ بولنے والے کب تک جھوٹ بولے گا، رمضان میں رک جا۔ غیبت کرنے والے کب تک غیبت کرے گا، رمضان آیا ہے رک جا۔ سود خوری کرنے والے کب تک سود خوری کرے گا، رمضان آیا ہے اکثر رک جا۔ اعلان ہو رہا ہے تو اب آدمی کے لیے تقوی پر چلنا، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مختصر کہیں گے تو شہر رمضان هو القرآن، رمضان قرآن، رمضان قرآن، رمضان قرآن۔ کیا مطلب؟ اللہ بول رہے ہیں رمضان آنے کی علامت یہ ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو۔ قرآن ہے تو رمضان مل رہا، رمضان آیا قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب زمانے پر تو رمضان آیا مگر آپ کو رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ راز اللہ والوں نے سمجھا تھا، دن میں یہ قرآن، رات میں یہ قرآن، تراویح میں یہ قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ فرمائے رمضان قرآن، رمضان قرآن، رمضان قرآن۔ میں ان تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہوں گا جو یہ کہتے مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، یہ وضو مت کرو۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا لیکن قرآن اٹھانے آتا، قرآن وضو کر کے اٹھانے آتا، قرآن کھولنے آتا، قرآن دیکھنے آتا، قرآن پر انگلی پھیرنا آتا۔ اتنا تو کرو کہ قرآن کو جو ہے انگلی پھیرتے ہوئے میرے رب کا کلام محبت سے ایسا انگلی پھیرنے والوں کی ادا بھی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ پانے والے کے لیے بہت کچھ ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں پانا ہے تو ان کے لیے بہانے ہیں۔ اس لیے قرآن رمضان، قرآن رمضان دو ایک ساتھ اہتمام سے چلے۔ آئیے حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مہینے کے ساتھ کچھ صفات بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا رمضان ہوا شہر الصبر، کیسا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگ رہی صبر کر لے رہے، پیاس لگ رہی صبر کر لے رہے، دھوپ میں حلق سوکھی جا رہا صبر کر لے رہے، مگر غصہ آیا تو صبر نہیں ہوئی، غصہ آیا تو بڑا بھڑاس نکالا۔ بعض جگہ رمضان میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا، صبر کے مہینے میں صبر نہیں آیا تو بقیہ 11 مہینے کیا صبر نہیں تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے تو ہر اعتبار سے ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہ ہو، لیکن افسوس کے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں وہاں صبر کا دامن چھوٹ جاتا، اہل بیت ہی نہیں ایک دوسرے کی گریبان پکڑ کے مار پیٹ، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ صبر کے مہینے میں
हमदर्दी करने का महीना है। रमजान क्या है? गरीबों के साथ हमदर्दी करने का महीना है। बिला लिहाज मजहब मिल्लत, गरीबों को, जो गरीब हमारे बरादरान वतन है, उनकी भी खिदमत करना इस्लाम का एक हिस्सा है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये बताती है, 25 साल नौजवान आपने मक्कातुल मुकर्रमा में वेलफेयर सोसाइटी खिदमत अंजाम दी। समाज में इस कदर लोगों की खिदमत की कि सारा वक्त हुजूर का आशिक हो गया। इन्नका लतसीलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रीबुल ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत मौजूद है। हुजूर के काम पे वेलफेयर सोसाइटी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, अल्लाह के नबी सबकी खिदमत करते हैं। तो शहरुल मुवासात के अंदर ये पैगाम है। रोजे ने सबक सिखा दिया, जब आदमी पर रोजा फर्ज हुआ, मालदार भी रोजा रख रहा है, करोड़पति भी रख रहा है, लखपति भी रख रहा है, जमीन का जागीरदार भी रख रहा है। रोजा रखने से उसको समझ में आया भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। ख्याल आता है भूखों का क्या हाल होगा, प्यासों का क्या हाल होगा। इसके लिए सदका खैरात निकालता है। इसीलिए अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रमज़ान आ गया, किसी भी रोज़ेदार के दिल में गरीबों की हमदर्दी पैदा नहीं हुई तो समझ लो रमज़ान ज़माने पर तो आया है, लेकिन इसको रमज़ान नसीब नहीं हुआ। रमज़ान नसीब होने की अलामत ये है कि वो गरीबों के लिए ख्याल करके सदका और खैरात खर्च करे। इसलिए भाइयों, जमीयतुल उलमा के प्लेटफार्म से भी ये काम होता है, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों तक पहुंचकर अनाज गल्ला पहुंचाया जाता है ताकि रमज़ान में वो इत्मीनान से रोज़े रख सके। ये काम करने की ज़रूरत है भाई। रमज़ानुल मुबारक में बाद रोज़ाना मजदूरी करते हैं तो पेट भर सकते हैं, ऐसे भी कई लोग इनको रोज़ा कैसा रखेंगे। हमारा काम है ऐसे सारे गरीबों का जायजा ले, कहें कि भाई रमज़ान में रोज़ा रखो, तुम्हारे राशन पानी का जितना इंतज़ाम है वो हम कर देंगे। आपकी मेहनत से एक घर में पूरा राशन पहुंच गया, लोग सब रोज़ा रहेंगे तो इंशाअल्लाह उस रोज़े का सवाब आपको भी मिलेगा। अब गरीबों के साथ हमदर्दी का महीना है, वो शहरुल मुवासात। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल तुवफ़्फ़रु फ़ीहिल उजूर, ये वो महीना है जिसमें अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। कैसा बढ़ा दिया जाता है? मन अद्दा फरीज़तन फ़ीही काना कमन अद्दा 70 फरीज़तन फ़ीमा सिवा व मन अद्दा फ़ीही बिखस्लतिन मिनल खैरि काना कमन अद्दा फरीज़तन फ़ीमा सिवा। जो शख्स एक नफिल अदा करता है रमज़ान में, उसको फ़र्ज का सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज अदा करता है तो 70 फ़र्ज का सवाब मिलता है। एक फ़र्ज का सवाब कितना है भाई? 70 फ़र्ज। और फरीज़तन मुतलक है, एक रोज़ा है तो 70 रोज़ों का सवाब, एक नमाज पढ़ेंगे फ़र्ज 70 फ़र्ज नमाज पढ़ने का सवाब। ज़कात का 1 रुपया निकालेंगे तो 70 रुपये निकालने का सवाब, 1000 रुपये निकालेंगे तो 70,000 रुपये खर्च का सवाब, 1 लाख रुपये खर्च करेंगे तो 70 लाख खर्च करने का सवाब। कोई ईमानदार खुशनसीब 1 करोड़ की ज़कात निकालता है तो 70 करोड़ निकालने का सवाब। उलमा जानते हैं मनाता फरीज़तन मुतलक है, नकीरा है, हर फ़र्ज़ पर फिट होता है। माँ बाप की खिदमत भी फ़र्ज़ है। रमज़ान में माँ बाप की खिदमत करने वाले को आम दिनों का सवाब बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? भाइयों, ये नेकी कमाने का ज़माना है, खूब नेकियों के कमाने में आप हज़रात आगे बढ़िए। बहरहाल ये औसाफ जो कुरान में बयान किए गए वो सिफत अपने अंदर
रमजान शहर सबर है, सब्र और अखलाक पैदा करना। शहर मुवासात है, गरीबों के साथ हमदर्दी करना है। और फिर शहरुन तुवफ़्फ़अ फ़ीही उजूर, ये महीने में नेकियां बकसरत करना ताकि अजर और सवाब बढ़ जाए। बहरहाल ये पैगाम आप हजरात तक पहुँचाया गया है। मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी, अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की कहे हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आने वाला रमज़ान नहीं मालूम किसके हक़ में आखिर है, फिर दोबारा ये रमज़ान नसीब नहीं होगा। कितने लोग हमारे अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार जिनके जनाजे उठ गए हैं, एक दिन हमारा भी दुनिया से जनाजा उठने वाला है। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझो, मौत के आने से पहले पहले हुजूर की हिदायत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों खाली वक्त जो मिला है उसको गनीमत समझो। मशगूली के आने से पहले पहले सेहत की दौलत को गनीमत समझो। बीमारी के आने से पहले पहले जवानी को गनीमत समझो। बुढ़ापा के आने से पहले पहले जिंदगी के इन लम्हात को गनीमत समझो। मौत के आने से पहले पहले अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगियों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैरा कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फता ऐन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा। आपस में अल्लाह कौमी यकजहती नसीब फरमा। एक दूसरे से मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमा। मौला नफ़रतों की फैलाई हुई आग को बुझा दे मौला। अपने करम से मोहब्बतों के छींटों से एक दूसरे के क़ुलूब के मिलने के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह आने वाले रमज़ान की बरकतें, रहमतें, सआदतें खूब नसीब फरमा। एक एक लम्हा, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक पूरे महीने के अल्लाह कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। तक़वे का महीना है, तक़वा तेरी की मौला। अल्लाह कुरान का महीना है, कुरान से शगफ नसीब फरमा। सब्र का महीना है, अखलाक अता फरमा। हमदर्दी का महीना है, गरीबों की हमदर्दी दिलों में पैदा फरमा। आखिरत और ख़बर के बेन बैलेंस और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का महीना है। मौला कसरत से नेकियां करके अपनी आखिरत के बेन बैलेंस करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।